Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 6. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is the book Codecraft Creative Learning of Computers. Let's move on to chapter number 5, PowerPoint 2021 Advanced Features. So here we will learn about the advanced features of PowerPoint 2021. Let's move on to core concepts. So on completion of this chapter, you will be able to know about Slide Master, using the Slide Master, inserting a smart art graphic, inserting a table, inserting a chart, applying animation effects, applying transitions. So these all topics we are going to cover in this chapter. Let's move on to warm-up exercise. Here you have to write the name of different tabs of MS Word PowerPoint 2021 and the space given below. So here the different tabs are File tab, Home tab, Insert tab, Design tab, Transition tab, Animation tab, Slideshow tab, Review and View Help tab. So these tabs you will find in MS PowerPoint 2021. Let's move on to Slide Master. So here we will learn about Slide Master. So the Slide Master is a useful feature of PowerPoint. ये जो Slide Master है ये बहुत यूजफुल फीचर है PowerPoint का. It is the topmost slide of a presentation. ये presentation का सबसे ऊपरी slide होता है. That stores information regarding the themes and slide layouts of the presentation. जिसमें आपको information मिलेंगी किससे जुड़ी, themes और slide layout से जुड़ी, जो भी हमारे presentation में important है. Including the fonts, background design, placeholder, sizes, positioning and color schemes. जिसमें fonts आते हैं, background design आते हैं, placeholders आते हैं, sizes आते हैं, positioning आती है और color schemes आते हैं. A slide master sets the default layout and formatting for all the other slides. Slide master क्या करता है, ये एक default layout को set करता है format करने के लिए दूसरी slides को. It actually controls the entire presentation. ये सारे presentation को control करने का काम करता है. Any change made in the slide master page automatically reflects on every slide in the presentation. Presentation में हर एक slide में changes तब आते हैं जब हम slide master में कोई भी change करते हैं. तो अगर हमने वहाँ पे कोई भी change किया तो वो automatically सारे slides में show होने लगेगा. A slide master consists of two placeholders. यहाँ पे आपको दो placeholders मिलते हैं. सबसे पहला है title placeholder जिसे हम slide title placeholder कहते हैं. फिर आता है body text placeholder. So ये जो slide title placeholder है, it is the first placeholder for the title of the page. पेज के टाइटल के लिए होता है and you can move the title placeholder anywhere on a slide. स्लाइड में हम कहीं भी से मूव कर सकते हैं. When we talk about body text placeholder, this placeholder includes general objects like text with bullets, charts, pictures and many more. ये जो placeholder है इसमें आपको general objects मिलेंगे जैसे कि text जिसमें bullets होते हैं, charts मिलेंगे, pictures मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. Each slide master contains one or more standard or custom sets of layouts. जितने भी slide masters हैं इनमें आपको जो है एक या उससे ज़्यादा standard या फिर custom sets मिलेंगे layouts के. Now let's learn about using the slide master. So to use the slide master we have to follow these steps. First we have to click on the slide master option in the master views group on the view tab. So view tab के master views group में हमें जाना है. तो ये है हमारा view tab. इसमें हमें masters view group में जाना है. यहाँ पे हमें slide master मिलेगा. इस पे हमें क्लिक करना होगा. Now in this view you will see the master slide at the top in the left pane. यहाँ पे हम देखेंगे कि जो master slide है वो ऊपर की तरफ है left pane में with the layout slides beneath it. जिसके नीचे आपको layout slides मिलेंगी जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है. You can choose any of the layouts from the layout slide. So layout slides में से हम किसी भी slide को choose कर सकते हैं. For example, if you want to make changes to all the slides that use title and content layout, select the title and content layout master slide in the pane.
सो अगर आप चाहते हैं कि चेंजेस करना है आपको स्लाइड में, जैसे कि टाइटल एंड कंटेंट लेआउट है इसमें, तो आपको टाइटल एंड कंटेंट लेआउट को चूज करना होगा इस पेन में से। नाउ क्लिक ऑन द थीम्स। अब हमें थीम्स पे क्लिक करना है, जो कि हमें मिलेगा इन द एडिट थीम्स ग्रुप ऑन द स्लाइड मास्टर टैब। सो स्लाइड मास्टर टैब में हमें जो है एडिट थीम्स में हमें ये ऑप्शन मिलेगा। एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड थीम फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट। दिए गए लिस्ट में से जो भी थीम हमें चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ क्लिक ऑन द बैकग्राउंड स्टाइल्स। जो बैकग्राउंड स्टाइल है उस पर क्लिक करना है, जो कि हमें मिलेगा बैकग्राउंड ग्रुप में स्लाइड मास्टर टैब के। नाउ सेलेक्ट द रिक्वायर्ड बैकग्राउंड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो भी हमें बैकग्राउंड चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ टू चेंज द टेक्स्ट कलर क्लिक ऑन द होम टैब। अब होम टैब पे क्लिक करना है ताकि हम टेक्स्ट के कलर को हम चेंज कर सके। एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन फॉन्ट कलर इन द फॉन्ट ग्रुप। फिर हमें जो है फॉन्ट ग्रुप में जाके फॉन्ट कलर चूज करना है। नेक्स्ट सेलेक्ट एनी फॉन्ट कलर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको बहुत सारे फॉन्ट कलर मिलेंगे, उसमें से चूज कर लें। द चेंज फॉन्ट कलर will appear in all the slides in the slide master task pane. So जो भी कलर हमने चेंज किया है स्लाइड मास्टर में वो हर एक स्लाइड में आपको शो होने लगेगा लेफ्ट में। Likewise you can apply different formatting changes on slides with a specific layout. इसी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेटिंग में चेंजेस ला सकते हैं within the specific layout. Now remember that text on the master slide is used only for styling. हमें ये बात याद रखनी है कि मास्टर स्लाइड में हमने जो भी जो है टेक्स्ट यूज किया है वो सिर्फ स्टाइल करने के लिए यूज किया है। The text on the actual slide such as titles and lists should be typed in the normal view. So जो भी चीज आप टाइप कर रहे हैं वो सब कुछ हमें नॉर्मल व्यू में टाइप करना है। To enter and edit the header and footer contents, अगर आप हेडर और फुटर कंटेंट को एडिट करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, तो हमें हेडर और फुटर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जो कि हमें टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा इंसर्ट टैब के। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन द क्लोज मास्टर व्यू। क्लोज मास्टर व्यू पे हमें क्लिक कर देना है। दिस बटन इज देयर इन द क्लोज ग्रुप अंडर द स्लाइड मास्टर टैब। स्लाइड मास्टर टैब में आपको क्लोज ग्रुप मिलेगा, वहां पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा क्लोज मास्टर व्यू, and by this we can close the slide master view. So these are the changes that you will see in your program. Now let's learn about creating a new custom layout. कैसे हम एक नया custom layout create कर सकते हैं। So if you do not find a standard layout that suits your needs, अगर आपको एक standard layout नहीं मिलता है जो आपके needs को suit कर रहा है, you can create a custom layout that perfectly suits your slide content. हम क्या कर सकते हैं, हम एक कस्टम लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे स्लाइड कंटेंट को परफेक्टली सूट करेगा। नाउ लेट अस क्रिएट अ न्यू कस्टम लेआउट बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया कस्टम लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। लेट्स क्लिक ऑन द व्यू टैब। सबसे पहले हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे है हमारा व्यू टैब, एंड देन वहां से हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है स्लाइड मास्टर ऑप्शन को मास्टर व्यूज ग्रुप में जाके। नाउ चूज अ लेआउट स्लाइड फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट प्रेजेंट इन द स्लाइड्स मास्टर टास्क पेन। सो स्लाइड मास्टर टास्क पेन में बहुत सारे आपको स्लाइड्स मिलेंगे, उसमें से जो भी हमें चाहिए वो हमें चूज करना है। एंड डिलीट एनी अनवांटेड और डिफॉल्ट प्लेस होल्डर, और फिर हमें डिलीट कर देना है किसी भी अनवांटेड या फिर डिफॉल्ट प्लेस होल्डर को यहाँ से, जैसे कि हेडर फुटर और द डेट एंड टाइम। हेडर फुटर हो गया या फिर डेट टाइम हो गया। बाय क्लिकिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ द प्लेस होल्डर, ताकि हम जो बॉर्डर है प्लेस होल्डर का उस पर हम क्लिक करके ये काम कर सकते हैं। एंड देन वी हैव टू प्रेस द डिलीट की, उसके बाद हमें डिलीट की को प्रेस करना है। नाउ ऐड अ प्लेस होल्डर ऑन द स्लाइड मास्टर बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट प्लेस होल्डर ड्रॉप डाउन एरो। अब हमें क्या करना है, एक प्लेस होल्डर को ऐड करना है स्लाइड मास्टर में। कैसे, क्लिक करके इंसर्ट प्लेस होल्डर ड्रॉप डाउन एरो पे, जो कि है इन द मास्टर लेआउट ग्रुप, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। सेलेक्ट अ प्लेस होल्डर फ्रॉम द लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड। अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो। नाउ ड्रैग द माउस ऑन द स्लाइड टू पोजिशन द न्यू
प्लेस होल्डर। अब हमें क्या करना है, माउस को जो है ड्रैग करना है स्लाइड पे, ताकि हम जो हमारी पोजीशन है नए प्लेस होल्डर की वो यहाँ पे हम ला सकें। यू कैन रिसाइज द प्लेस होल्डर बाय ड्रैगिंग वन ऑफ इट्स रिसाइजिंग हैंडल्स। रिसाइजिंग हैंडल को यूज करके हम इसको रिसाइज कर सकते हैं प्लेस होल्डर को। फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर प्लेस होल्डर इज क्रिएटेड एज शोन इन द डायग्राम। जो पिक्चर प्लेस होल्डर है वो ऐसा दिखता है जैसा कि हमें यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर प्लेस होल्डर। नाउ इंसर्ट अ पिक्चर बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट पिक्चर स्टॉक इमेज ऑप्शन एंड डबल क्लिक ऑन द सेलेक्टेड पिक्चर। सो हमें क्या करना है, पहले इंसर्ट में जाना है, फिर पिक्चर्स में जाना है, फिर हमें जाना है स्टॉक इमेजेस में, और वहाँ पे हमें जो भी पिक्चर चाहिए वो सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देंगे उस पिक्चर पे। नाउ राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड लेआउट थंबनेल, जो भी हमारा थंबनेल था उसको राइट क्लिक करना है, एंड फिर हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है रीनेम लेआउट ऑप्शन को कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से। द रीनेम लेआउट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जो रीनेम लेआउट डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। टाइप अ न्यू नेम दैट डिस्क्राइब्स द न्यू लेआउट यू हैव कस्टमाइज्ड। एक नया नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है जो कि आपके जो कस्टमाइज किया है उसके लेआउट को डिस्क्राइब करे। नाउ क्लिक ऑन द रीनेम बटन। अब हमें रीनेम बटन पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द सेव एज ऑप्शन। अब हमें फाइल टैब पे क्लिक करना है और सेव एज ऑप्शन को चूज करना है। टाइप अ फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। हमें एक फाइल नेम को जो है टाइप करना है फाइल नेम बॉक्स में जाके। इन द सेव एज टाइप लिस्ट सेलेक्ट द पावर पॉइंट टेम्पलेट। यहाँ पे हमें पावर पॉइंट टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है और फिर क्लिक कर देना है सेव ऑप्शन पे। नाउ क्लिक ऑन द क्लोज मास्टर व्यू बटन। अब हमें क्लिक करना है क्लोज मास्टर व्यू बटन पे, जो कि हमें स्लाइड मास्टर टैब में मिलेगा। The layout that you added and customized now appears in the list of standard built-in layout drop-down list. So जो layout है वो अब add हो जाता है and customize हो जाता है और ये appear हो जाता है हमारे उस list में, जो कि हमारे layout drop-down list में होता है, जो कि हमें मिलेगा slides group में home tab के, जैसा कि हमें picture में दिख रहा है। Now इंसर्टिंग अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। कैसे हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को इंसर्ट कर सकते हैं? सो स्मार्ट आर्ट इज अ ग्राफिक टूल दैट अलाउज यू टू प्रेजेंट डेटा और इंफॉर्मेशन विथ ग्राफिक्स इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द टेक्स्ट। सो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जो है ये एक टूल है जिसमें हम डेटा को जो है ग्राफिक्स के फॉर्म में शो करते हैं। सिंपली उसे टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाने की जगह हम उसे ग्राफिक्स के फॉर्म में शो करते हैं। These graphics help in conveying your ideas। ये जो ग्राफिक्स है आपको आपके आइडियाज़ को कन्वे करने में हेल्प करते हैं एंड मैसेजेस को कन्वे करने में हेल्प करते हैं ईजिली एंड इफेक्टिवली। तो इसकी मदद से हम ईजिली इफेक्टिवली अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। इट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ ग्राफिकल लेआउट्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्राफिकल लेआउट्स मिलेंगे, जैसे पिरामिड्स मिलेंगे, लिस्ट, हियार्की, मैट्रिक्स एक्सेट्रा। टू डिस्प्ले डेटा इन एनी प्रेजेंटेशन, जिसमें जो डेटा किसी भी प्रेजेंटेशन में डिस्प्ले होता है। टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट इन अ स्लाइड, अगर आपको स्लाइड में स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है तो यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। पहला है इन अ स्लाइड क्लिक ऑन द स्मार्ट आर्ट ऑप्शन। स्लाइड में जाके हमें स्मार्ट आर्ट ऑप्शन को क्लिक करना है, जो कि हमें इलस्ट्रेशन ग्रुप पे मिलेगा इंसर्ट टैब के। या फिर हमें क्या करना है, इफ यू आर इन द टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, अगर हम जो है, या फिर हमें क्या करना है, इफ यू आर ऑन द टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड क्लिक ऑन द इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक प्रेजेंट ऑन द स्लाइड। सो अगर हम टाइटल और कंटेंट स्लाइड पे हैं तो हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। ये रहा आइकन, इस आइकन पे क्लिक करना है जो कि आपको स्लाइड में मिलेगा। नेक्स्ट, चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स। दिस बॉक्स विल अपीयर, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। नाउ सेलेक्ट अ कैटेगरी ऑन द लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल हियार्की, एंड चूज द डिजायर्ड लेआउट। अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस में से हमें हियार्की को चूज करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो इसको हमने चूज किया, एज एन एग्जाम्पल इसे हमने लिया, एंड
like organization chart on the right side, then click on OK. तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे हमें क्लिक करना है एंड देन ओके पे क्लिक करना है. अ ब्लैंक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट विल अपीयर ऑन द स्लाइड. स्लाइड पे एक ब्लैंक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अपीयर हो जाएगा. नाउ क्लिक इनसाइड अ बॉक्स इन द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक. सो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का जो बॉक्स है उसके अंदर क्लिक करना है ताकि हम टेक्स्ट को ऐड कर सकें. ऐड टेक्स्ट at different levels and delete the unwanted boxes. So जहाँ जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पे हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं और जो बॉक्सेस हमें नहीं चाहिए उनको हम डिलीट कर सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो एंटरटेनमेंट में हमने मूवी, एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर ये सारी चीज़ें लिखी हैं. You can change the color scheme of the smart art graphic by selecting the change color drop down arrow in the smart art styles ग्रुप ऑन द स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन टैब. हम क्या कर सकते हैं, कलर स्कीम को भी चेंज कर सकते हैं इसमें. उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चेंज करना होगा, हमें चूज़ करना होगा चेंज कलर ऑप्शन को. एंड ये हमें मिलेगा स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप में स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन टैब के. व्हेन यू इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, जैसे ही हम एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को इंसर्ट करते हैं, दो टैब्स जैसे कि स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन एंड फॉर्मेट, ये दो टैब जो है ये दोनों ही आ जाते हैं. यूजिंग दीज टैब्स यू कैन कस्टमाइज योर ग्राफिक. इन टैब्स की मदद से हम अपने ग्राफिक को कस्टमाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट द शेप ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स. हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के शेप को भी जो है कस्टमाइज कर सकते हैं. कैसे? बाय चूजिंग अ शेप फ्रॉम द शेप स्टाइल्स ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब. सो फॉर्मेट टैब पे हमें मिलेगा शेप स्टाइल्स ग्रुप. वहाँ से जाके हम जो है चूज़ कर सकते हैं एक अलग फॉर्मेट, अलग शेप हमारे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का. नेक्स्ट कम्स इंसर्टिंग अ टेबल. सो लाइक वर्ड, PowerPoint also allows you to organize the information in a tabular format using the table feature. तो जैसे वर्ड में हम करते हैं वैसे ही पावर पॉइंट भी हमें हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में टेबल के फॉर्म में. और इसमें हम क्या करते हैं, टेबल फीचर को यूज़ करते हैं. अ टेबल एज अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स. टेबल कैसे बनता है, रोज और कॉलम्स के मिक्स होने से बनता है. एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन एन इफेक्टिव मैनर. ये क्या करता है, डेटा को इफेक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है. Now to insert a table, follow these steps. अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे. पहला है इन अ स्लाइड क्लिक ऑन द टेबल ऑप्शन. स्लाइड में जाना है, टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है टेबल्स ग्रुप में जाके, जो कि आपको मिलेगा इंसर्ट टैब के. या फिर आपको क्या करना है, इफ़ यू आर ऑन द टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, अगर हम टाइटल और कंटेंट स्लाइड पे हैं तो हम वहाँ पे देखेंगे वहाँ इंसर्ट टेबल आइकन जो है वहाँ पे प्रेजेंट होगा. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स एंड इट विल अपीयर एंड देन डिफाइन द नंबर्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज एंड क्लिक ऑन ओके. सो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कितने रोज कॉलम्स चाहिए, उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे. अ न्यू टेबल विल बी डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रोज एंड कॉलम्स. एक नया टेबल यहाँ पे सामने आ जाएगा जिसमें दिए गए रोज और कॉलम्स होंगे जो हमने लिखे हैं. Now place the mouse pointer in the first cell of the table. अब हमें माउस के पॉइंटर को फर्स्ट सेल में डालना है टेबल के एंड टाइप द हेडिंग. हेडिंग को टाइप करना है. प्रेस द टैब की. अब टैब की से हम अगले टेबल के सेल में आ गए. Similarly, insert data for other cells on the table using the tab and arrow key. टैब और एरो की मदद से हम अलग अलग सेल्स में जा सकते हैं और बाय क्लिकिंग द रिक्वायर्ड सेल, या फिर उस सेल पे भी हम क्लिक कर सकते हैं. There is a note given when you insert a table, two new tabs namely table design and layout to appear. जब भी हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं टेबल को, दो नए टैब्स आ जाते हैं, टेबल डिज़ाइन और लेआउट. यू कैन अप्लाई वेरियस टेबल डिज़ाइंस. हम अलग अलग तरीके के टेबल डिज़ाइंस डाल सकते हैं जैसे कि टेबल स्टाइल्स, शेडिंग, बॉर्डर इफेक्ट्स, वर्ड आर्ट स्टाइल्स, ड्रॉ बॉर्डर्स एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. These tools are helpful while formatting a table in a slide. ये टूल्स तब काम आते हैं जब हम टेबल को जो है फॉर्मेट कर रहे होते हैं किसी भी स्लाइड में. नेक्स्ट कम्स इंसर्टिंग अ चार्ट.
So a chart is an effective way to display data in a graphical or pictorial form. चार्ट क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम डेटा को एक ग्राफिकल या फिर पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं. चार्ट्स मेक इट इजियर टू शो कंपैरिजन एंड ग्रोथ. चार्ट की मदद से हम बहुत ही आसानी से कंपैरिजन और ग्रोथ दिखा सकते हैं, रिलेशनशिप दिखा सकते हैं वैल्यूज के बीच में, ट्रेंड्स के बीच में, डेटा में. एंड चार्ट्स प्रोवाइड एन एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन. चार्ट्स क्या करते हैं? हमें प्रोवाइड करते हैं एक बहुत ही एक्यूरेट एनालिसिस इंफॉर्मेशन का. टू इंसर्ट अ चार्ट फॉलो दी स्टेप्स. अगर हमें चार्ट को इंसर्ट करना है तो ये जो स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें फॉलो करना है. पहला है हमें क्लिक करना है चार्ट ऑप्शन पे जो कि हमें इलस्ट्रेशंस ग्रुप में मिलेगा इंसर्ट टैब के, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इफ़ यू आर ऑन द टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड. अगर हम टाइटल और कंटेंट स्लाइड पे हैं तो वहाँ पे हमें इंसर्ट चार्ट आइकन मिलेगा, वहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं. फिर हमें क्या करना है, द इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज शोन इन डायग्राम. इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स जो है आ जाएगा सामने. नाउ अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है चार्ट टाइप को लेफ्ट पेन से, एंड द सब टाइप्स of the selected chart will be reflected on the right pane. So जो भी चार्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो लेफ्ट पेन में दिखेगा हमें, एंड उसका जो सब टाइप है सिलेक्टेड चार्ट का वो हमें जो है राइट पेन में दिखाई देगा. नेक्स्ट सेलेक्ट द कॉलम चार्ट. अब हमें जो है कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है. द चार्ट विल बी डिस्प्लेड विद आवर डेटा शीट. जो चार्ट है यहाँ पे डेटा शीट के साथ डिस्प्ले होगा, विच कंटेन्स द डिफॉल्ट डेटा एज शोन इन डायग्राम गिवन बिलो. जिसमें जो है डिफॉल्ट डेटा है जो कि यहाँ डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डेटा इज ऑलरेडी रिटन. यू कैन रिप्लेस द डिफॉल्ट डेटा विथ योर ओन डेटा. इस डेटा को हम अपने डेटा के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. टू डिलीट ऑल द डेटा फ्रॉम द डेटा शीट, सेलेक्ट इट एंड प्रेस द डिलीट की. अगर आप चाहते हैं कि सारे डेटा को डिलीट करना है तो सबको सेलेक्ट कर लें और फिर डिलीट की को प्रेस कर दें. लेट्स मूव ऑन टू एक्स्ट्रा बाइट. व्हेन यू क्रिएट अ चार्ट, टू टैब्स अपीयर. जैसे हम एक जो है चार्ट को क्रिएट करते हैं, दो टैब्स आ जाते हैं. पहला है चार्ट डिजाइन, दूसरा है फॉर्मेट. दीज इंक्लूड्स वेरियस चार्ट टूल्स एंड कमांड्स. इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के चार्ट टूल्स मिल जाएंगे, कमांड्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करते हैं मॉडिफाई करने में, फॉर्मेट करने में चार्ट को. नेक्स्ट इज अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट्स. कैसे हम एनिमेशन इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं. सो द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट्स, लोगोज एक्सेट्रा ऑन द स्लाइड इज कॉल्ड एनिमेशन. सो एनिमेशन क्या है? ये एक तरीका है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, चार्ट्स को, लोगोज को स्क्रीन पे मूव करते हैं. It is quite beneficial when you wish to focus on some important points. ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जब हम किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करते हैं. एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. ये जो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है एंड हेल्प्स इन मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर कम्युनिकेटिंग, और इंफॉर्मेशन को ज़्यादा कम्युनिकेटिंग बनाता है. बिसाइड्स गिविंग विजुअल इफेक्ट्स टू योर प्रेजेंटेशन, ये हमारे प्रेजेंटेशन को विजुअल इफेक्ट देता है. इसके अलावा ये क्या करता है, यू कैन ऑल्सो एनहांस योर स्लाइड ऑब्जेक्ट्स सच एज पिक्चर्स, शेप्स, टेबल्स, स्मार्ट आर्ट एक्सेट्रा. यहाँ पे हम अपने जो भी जो है स्लाइड ऑब्जेक्ट्स से, जैसे कि पिक्चर्स हो गए, शेप्स हो गए, टेबल्स हो गए, स्मार्ट आर्ट हो गए, इन सबको जो है एनहांस भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सूटेबल एनिमेशन इफेक्ट्स, जिसमें हम सूटेबल एनिमेशन इफेक्ट्स को अप्लाई करते हैं. You can add more than one animation effect to the same object or apply the same animation effect to multiple objects. हम जो है ऐड कर सकते हैं एक एनिमेशन इफेक्ट को एक ही ऑब्जेक्ट में, या फिर सेम एनिमेशन इफेक्ट को बहुत सारे ऑब्जेक्ट में. कैसे? बाय यूजिंग द ऑप्शन इन द एनिमेशन ग्रुप. जो भी ऑप्शन हमें मिलेगा एनिमेशन ग्रुप में, एनिमेशन टैब के, उसके थ्रू. Now follow the given steps to apply animation effects to the slide objects. कैसे हम एनिमेशन इफेक्ट को डाल सकते हैं स्लाइड ऑब्जेक्ट्स में. सबसे पहले हमें ओपन करना होगा किसी भी प्रेजेंटेशन को, और फिर सेलेक्ट करना होगा ऑब्जेक्ट को दैट यू वांट टू एनिमेट, जिसे हम एनिमेट करना चाहते हैं. नाउ क्लिक ऑन द एनिमेशंस टैब फॉलोड बाय द ऐड एनिमेशन ऑप्शन. अब हमें एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है, वहाँ पर जाके ऐड एनिमेशन ऑप्शन को चूज करना है जो कि आपको मिलेगा एडवांस एनिमेशन ग्रुप के अंदर.
सो आप देख सकते हैं एनिमेशन टैब पे हम गए हैं एंड यहाँ से हम जो है ऐड एनिमेशन ऑप्शन पे जा रहे हैं एंड यहाँ पे हमें मिलेगा एनिमेशंस बहुत सारे. नाउ a drop down menu will appear with 4 different categories of animation effects which are as follows. यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा जिसमें बहुत सारे कैटेगरीज एनिमेशन के. पहला है एंट्रेंस. So as the name suggests, these effects decide the manner in which an object enters the slide during the slideshow. ये बताता है, जैसे कि इसका नाम है एंट्रेंस, ये बताता है कि कैसे कोई भी चीज़ स्लाइड में एंटर करेगी. नेक्स्ट आता है एम्फेसिस. So these effects determine how the objects on the slide draw attention of views during the slideshow. ये बताता है कि कैसे जो भी चीज़ें हैं हमारे स्लाइड में वो अटेंशन को ग्रैब कर रही हैं. These effects make an object shrink or grow in size. ये जो इफेक्ट है ये ऑब्जेक्ट को या तो श्रिंक कर देता है या साइज में बड़ा कर देता है, उसमें कलर फिल कर देता है, स्पिन कर देता है सेंटर में और भी बहुत सारी चीज़ें करता है. फिर आता है एग्जिट. So these efforts control the manner in which the object exits from the slide during the slideshow. So slideshow के दौरान जो है ऑब्जेक्ट कैसे एग्जिट करेगा वो ये बताता है. नेक्स्ट फोर्थ आता है मोशन पाथ्स. So you can use these effects to make an object move up or down. ये जो है इफेक्ट है ये क्या करता है ऑब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे मूव करने में हेल्प करता है, लेफ्ट और राइट मूव करने में हेल्प करता है, स्टार और सर्कुलर पैटर्न में मूव करने में हेल्प करता है और भी बहुत सारे तरीकों से मूव करने में हेल्प करता है. ये जो इफेक्ट्स है दीज इफेक्ट्स एनेबल द ऑब्जेक्ट्स टू मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. ये इफेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में मदद करते हैं ऑन अ स्लाइड एंड फॉलो स्पेसिफिक पाथ ड्यूरिंग द स्लाइड शो. और फिर ये एक दिए गए पाथ को ही फॉलो करते हैं स्लाइड शो के दौरान. Now to view more animation effects of each category. अगर हम चाहते हैं कि हर एक कैटेगरी के और भी एनिमेशन इफेक्ट्स को हम देख सकें तो हमें क्या करना होगा, हमें सेलेक्ट करना होगा दिए गए ऑप्शन को जो कि अवेलेबल है ऐड एनिमेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू में, या फिर हमें क्या करना है क्लिक कर देना है मोर ऑप्शन पे, मोर ड्रॉप डाउन एरो पे एनिमेशन ग्रुप में जो कि हमारे एनिमेशन टैब में है. Now choose the desired animation effect from the displayed menu. अब जो भी दिया गया एनिमेशन इफेक्ट दिए गए मेन्यू में से उसको चूज करना है. After applying an animation effect to an object or text. So एनिमेशन इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट में आप देखेंगे you will notice that a number tag appears adjacent to the object on the slide pane. हम देखेंगे कि एक नंबर टैग आ जाता है उस ऑब्जेक्ट के साइड में स्लाइड पेन में. You can also specify when an animation should be played by choosing any of the options in the start box. हम ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कब जो है कोई भी एनिमेशन जो है आएगा चूज करके किसी भी ऑप्शन को कहाँ पे इन द स्टार्ट बॉक्स विच इज़ अवेलेबल इन द टाइमिंग्स ग्रुप. ये स्टार्ट बॉक्स कहाँ मिलेगा, टाइमिंग ग्रुप में मिलेगा हमें एनिमेशन टैब के, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. The options on the start box are. So जो options है यहाँ start box में वो है on click, with previous, after previous. So on click में क्या होगा, जो एनिमेशन है जैसे माउस को क्लिक करेंगे एनिमेशन will start. जब हम बात करते हैं with previous की, so to start the animation at the same time as the previous animation effect in the list. So यहाँ जो एनिमेशन है उसे स्टार्ट किया जाता है उसे सेम समय पे जैसे कि प्रीवियस एनिमेशन इफेक्ट होता है लिस्ट में. आफ्टर प्रीवियस, सो टू स्टार्ट द एनिमेशन इफेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस इफेक्ट. हम क्या करते हैं एनिमेशन इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं एकदम तुरंत बाद प्रीवियस इफेक्ट के इन द लिस्ट फिनिशेस. सो जो लिस्ट है उसके फिनिश होने से आफ्टर दैट वी डू दिस. Now to set the timing of the animation effects. अगर आप टाइमिंग को सेट करना चाहते हैं एनिमेशन इफेक्ट के तो आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा ड्यूरेशन बॉक्स को जो कि आपको टाइमिंग्स ग्रुप में मिलेगा. It helps you to change and control the speed of the animation effect. ये आपको एनिमेशन इफेक्ट के स्पीड को चेंज करने में मदद करता है. Likewise, you can set the delay time before the animation begins. इसी तरीके से हम सेट कर सकते हैं डिले टाइम को बिफोर एनिमेशन के शुरू होने के.
बाय यूजिंग द डिले बॉक्स की मदद से ये काम हम कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज द रीऑर्डर एनिमेशन ऑप्शन, हम रीऑर्डर एनिमेशन ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं जो कि हमें टाइमिंग ग्रुप में मिलेंगे, ताकि हम चेंज कर सकें ऑर्डर को इन विच द एनिमेशन इफेक्ट्स डू अपीयर, जिसमें एनिमेशन इफेक्ट्स दिख रहे हैं। ना क्लिक ऑन द प्रीव्यू ऑप्शन, अब हमें प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि प्रीव्यू ग्रुप में मिलेगा एनिमेशन टैब के, टू व्यू द इफेक्ट्स अप्लाइड टू द करेंट स्लाइड, जिससे जो भी इफेक्ट्स हैं जो भी अप्लाई किए गए यहाँ पे करंट स्लाइड में वो सारे हमें दिखाई दे सकें। नेक्स्ट, अप्लाइंग ट्रांजिशंस कैसे हम लगा सकते हैं यहाँ पे। सो ट्रांजिशंस अपीयर व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू द अदर ड्यूरिंग द स्लाइड शो, जब एक स्लाइड जो है बदल के दूसरे स्लाइड पे कन्वर्ट होता है तो उस समय ट्रांजिशन लगाया जाता है। यू कैन अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट्स टू अ सिंगल स्लाइड एज वेल एज ऑल द स्लाइड्स, या तो हम एक स्लाइड में से लगा सकते हैं, मल्टीपल स्लाइड्स में भी से हम लगा सकते हैं एक साथ। सो फॉर दिस वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स टू ऐड द ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट को लगाने के लिए हमें ये जो स्टेप्स दिए हैं इन्हें फॉलो करना होगा। पहला स्टेप कहता है सिलेक्ट द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू अप्लाई अ ट्रांजिशन, उस स्लाइड को सेलेक्ट करें जिसमें ट्रांजिशन लगाना है। अब हमें ट्रांजिशन टैब पे जाना है, ये है हमारा ट्रांजिशन टैब। अब हमें क्या करना है, मोर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। अगर आपको और ज़्यादा ट्रांजिशंस देखने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे ट्रांजिशंस दिए हैं, नन, मॉर्फ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन आर गिवन। नाउ सेलेक्ट एन इफेक्ट टू योर स्लाइड। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो भी ट्रांजिशन हमें चाहिए उसे हम सेलेक्ट कर देंगे। नाउ सेलेक्ट द इफेक्ट ऑप्शन इन द ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड ग्रुप। अब हमें ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड ग्रुप में जाके इफेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ताकि हम चूज कर सके जो भी डायरेक्शन है हमारे ट्रांजिशन इफेक्ट का हमारे स्लाइड पे। नाउ हमें क्या करना है, हमें क्लिक कर देना है ड्रॉप डाउन एरो पे जो कि हमारे साउंड ऑप्शन है, टाइमिंग ग्रुप में हमें ये मिलेगा, एंड सेलेक्ट एनी साउंड इफेक्ट ऑफ योर चॉइस। कोई भी जो भी हमें साउंड इफेक्ट चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर हमें क्लिक कर देना है प्रीव्यू ऑप्शन पे और जो भी इफेक्ट्स हैं उसे ऑब्जर्व करना है। स्पेसिफाई द ट्रांजिशन टाइमिंग बाय एंटरिंग द नंबर ऑफ सेकेंड्स और मिनट्स इन द ड्यूरेशन बॉक्स इन द टाइमिंग ग्रुप। अब हमें क्या करना है, जो भी ट्रांजिशन टाइमिंग है उसे स्पेसिफाई कर देना है, नंबर ऑफ सेकेंड्स या फिर मिनट्स डाल के ड्यूरेशन बॉक्स में जो कि टाइमिंग ग्रुप में हमें मिलेगा। फिर हमें सेलेक्ट कर देना है on mouse click checkbox if you want to advance the slide by clicking the mouse। फिर हमें जो है on mouse click checkbox पे क्लिक कर देना है, और अगर आप चाहते हैं कि जो एडवांस स्लाइड है उस पे हम जा सके। Now click on the after checkbox if you want the slide to advance automatically to the next slide। अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड अपने आप अगली स्लाइड पे चला जाए तो आपको आफ्टर चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो है अगली स्लाइड आ जाएगी। यू कैन स्पेसिफाई द स्लाइड एडवांस टाइमिंग इन द स्पिन बॉक्स। स्पिन बॉक्स में हम आराम से एडवांस टाइमिंग लिख सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन द अप्लाई टू ऑल ऑप्शन फ्रॉम द टाइमिंग ग्रुप। टाइमिंग ग्रुप में से हमें अप्लाई टू ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना है टू अप्लाई द सिलेक्टेड इफेक्ट ऑन ऑल द स्लाइड्स, ताकि हम जो भी दिया गया इफेक्ट है सारे स्लाइड्स पे लगा सकें। अदरवाइज द सिलेक्टेड इफेक्ट विल बी अप्लाइड ऑन द करंट स्लाइड ओनली। नहीं तो क्या होगा, जो अभी करंट स्लाइड है उस पर ही ये इफेक्ट लगेगा। नाउ क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब। अब हमें स्लाइड शो टैब पे क्लिक करना है और चूज कर देना है फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन। द प्रेजेंटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अलॉन्ग विथ ऑल द अप्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है शुरुआत से शुरू हो जाएगा और जितने ट्रांजिशन इफेक्ट्स लगाए हैं वो सारे प्ले होने लगेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्राई इट ऑन। सो हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इंसर्टिंग अ चार्ट इन योर नोटबुक। नोटबुक में कैसे हम चार्ट को इंसर्ट करते हैं ये लिखना है। सो डू इट योरसेल्फ। लेट्स मूव ऑन टू फ्लैशबैक टाइम। सो स्लाइड मास्टर सेट्स द डिफॉल्ट लेआउट एंड फॉर्मेटिंग फॉर ऑल अदर स्लाइड्स। स्लाइड मास्टर क्या करता है, सेट कर देता है डिफॉल्ट लेआउट और फॉर्मेटिंग सारे स्लाइड्स के लिए। स्मार्ट आर्ट इज अ ग्राफिकल टूल दैट अलाउज यू टू प्रेजेंट डेटा और इंफॉर्मेशन विथ ग्राफिक्स इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द टेक्स्ट।
स्मार्ट आर्ट क्या है? ये ग्राफिक टूल है जो हेल्प करता है आपको प्रेजेंट करने में डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स के साथ, इंस्टेड ऑफ जस्ट उन्हें हम टेक्स्ट के फॉर्म में यूज करें। अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स। टेबल क्या है? ये ग्रिड ऑफ सेल्स है जो कि अरेंज किया जाता है रोज और कॉलम्स में, एंड ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है ऑर्गेनाइज करने में, रिप्रेजेंट करने में डेटा को एक इफेक्टिव मैनर में। चार्ट इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डेटा इन अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल फॉर्म। चार्ट की मदद से हम डेटा को ग्राफिकल या फिर पिक्टोरियल फॉर्म में इजीली रख सकते हैं। द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट, logos etc. in any direction of the slide is called animation. Animation होता है किसी भी चीज को मूव करना। Next, transitions means transition appear when one slide changes to another during the slideshow. So these are some of the important points that you have to remember. Let's move on to knowledge check. So A exercise is mark the correct response. First one is, which tab has the slide master option? View, design, animations, home. Correct answer is view. Second, when you insert a chart, the data is displayed in a special window called application, data sheet, report, or none of these. Correct answer is data sheet. Third one, dash effect can be added to the objects on a slide. Transition, sound, animation, none of these. Correct answer is animation. Fourth one, a dash provides an accurate analysis of information. Table, chart, transition, animation. Correct answer is chart. Now let's move on to the next exercise, B exercise, which is gap fill exercise. First one is, in Slide Master, the title placeholder is the first placeholder for the title of page. Second, a table is a grid of rows and columns. Third one, you can also rename any layout using the rename button present in the edit master group on the Slide Master tab. Fourth one, transitions are the special effects that you see when one slide changes to another during the slide show. Next, question number C is true and false assessment. First one, any change made in the slide master page automatically reflect on every slide. Yes, true. Second, table is an effective way to display data in a graphical and pictorial form. This is false. Third, you cannot add more than one animation to the same object. False. And the fourth one is, to insert a table in a presentation, you can use a title and content slide layout. Yes, this is true. So these are the answers. Let's move on to the exercise, which is give appropriate responses to the questions. First one is, what is the slide master? Slide master is something that stores the info about the font, theme, layout, and any changes that are made here is automatically applied to the rest of the slides here. Next, question number 2, what do you understand by creating a new custom layout? So, creating a new custom layout means designing a unique layout which is not one of the default options that are present there. Question number 3, what are the benefits of using a chart in a presentation? So, when we use a chart in a presentation, it makes the data complete easier to understand, highlight strengths and patterns there. Now, question number 4 is define the slide transitions. So, slide transitions are the visual effects that occur when you move from one slide to another. So, these are the answers that you have to write down. And with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.